نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another session of Quranic Arabic Grammar Course by Noor Hidayat. آپ سب کو خوش آمدید ہے. لیکچر 1 میں ہم نے اسم سٹارٹ کیا تھا، اس کو کنٹینیو کیا، تو اس میں آگے ہم نے اسی لیکچر میں جنس کو پڑھا تھا، جینڈر کو. لیکچر 2 میں ہم نے اسم کا دوسرا پہلو سیکھا، جس میں ہم نے عدد کو سٹارٹ کیا ہے. اس میں ہم نے واحد اور مثنیٰ کے بارے میں پڑھا. واحد 1 کے لیے آتا ہے اور مثنیٰ 2 کے لیے. کیونکہ ہم نے عربی میں پڑھا تھا کہ عربی میں عدد 3 طرح سے آتا ہے. کسی بھی اسم کا عدد 3 طرح سے ڈسکرائب ہوتا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع. واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے. آج ہمارا ٹاپک ہے تیسرا، جمع کا. تو اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. عدد کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. جمع یعنی پلورل. جمع 2 سے زیادہ اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ ایگزامپل آ رہی ہے، مسلمان. یہ اردو میں لکھا ہوا ہے میں نے. ہم اس کے حروف پر غور کریں گے کہ اس میں کون کون سے حروف آئے ہیں. اس میں آئے ہیں میم، سین، لام، میم، الف، نون. اب جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں اردو میں تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں. واحد ہے مسلمان اور جمع ہے مسلمانوں. اب اگر آپ اس کی جمع پر غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ جو اس میں ہمارا واحد اسم ہے، جمع میں واحد اسم ہمارا ویسے ہی شروع میں موجود ہے، بالکل ٹھیک سے جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مسلمان اور یہاں پر بھی یہ مسلمان، اور اس کے سیکوینس بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، حروف کا سیکوینس سیم ہے ادھر، لیکن جمع میں صرف ہمارے پاس اضافہ ہوا آخر میں واو اور نون بولنا کا. ٹھیک ہے، اس اضافے سے بن گئی جمع مسلمانوں، یعنی بہت سے مسلمان. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سیکوینس یہاں پہ خراب نہیں ہوا. واحد اسم ادھر ویسے کا ویسے ہی موجود رہا اور اس میں ایڈیشن کے بعد وہ جمع بن گیا. ٹھیک ہے، 2 حروف کا ایڈیشن آخر میں ہوا، وہ جمع بن گئی. یہاں پہ ایک مسلمان اور یہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. واحد اسم میں کوئی چینجز نہیں آئی، اس کے حروف ویسے ہی برقرار رہے، صرف ایک آخر میں ایڈیشن ہوا جس کی وجہ سے جمع کا صیغہ بن گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس کافر. کافر کی جمع بنتی ہے، یہاں پہ اس کے دیکھیے، اس کے جو حروف ہیں کاف، الف، فا اور را. ٹھیک ہے، اب جب اس کی جمع بنتی ہے تو وہ بنتی ہے کفار. جب ہم کفار کو دیکھتے ہیں اور کافر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں جو حروف ہیں ان کا سیکوینس چینج ہو گیا. واحد میں کاف، الف، فا، را تھا، اور جب جمع بنی تو کاف، فا، الف، را. تو جو کافر کے بعد کاف کا الف تھا وہ آگے چلا گیا، سیکوینس چینج ہو گیا اور یہ جمع کا صیغہ بن گیا. اس کو بتانے کا مقصد ہے کہ عربی میں جمع جو ہے وہ 2 طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل ڈسکرائب کیا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جمع کس طرح سے آتی ہے عربی میں. عربی زبان میں جمع کی 2 اقسام ہیں. پہلی ہے جمع سالم، ساؤنڈ پلورل، اور دوسری ہے جمع مکسر، بروکن پلورل. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو، ہم نے مسلمان والی ادھر اگزامپل میں ہی دیکھ لیں اوپر کہ جمع سالم، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے یہاں پہ واحد اسم ویسے کا ویسے ہی موجود رہا ہے، صرف اس ایڈیشن کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ بن گیا تھا. تو اسی لیے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا واحد اسم جو اس کی ایکچوئل حالت ہے وہ اپنے اسی سیکوینس میں موجود رہتا ہے اور صرف ایک اضافے سے وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. جبکہ جمع مکسر، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے آپ کو، مکسر کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، یعنی بروکن. تو یہاں پہ جو واحد اسم تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. کچھ اضافہ ہوتا ہے کہیں پر
कहीं पर उसी हर्फ को आगे पीछे, उसके इसम के हरूफ को आगे पीछे करके जमा बन जाती है, तो इसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। तो हमने सीखा कि अरबी जुबान में जमा की दो अकसाम हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, जिन्हें आप इस तरह से भी याद रख सकती हैं कि साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम आगे कैसे इसकी सारी डिटेल्स को देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे जमा सालिम साउंड प्लूरल। ये कैसे बनती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम सीखते हैं। जमा की वो किस्म जिसमें वाहिद इसम अपनी असल हालत में बरकरार रहता है और इसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा करने से इसम की जमा बन जाती है। ठीक है, यानी जैसे मैंने आपको पीछे मुसलमान की एग्जांपल दी थी कि उसमें मुसलमान जो था वो आपका एज इट इज वैसे ही मौजूद रहा था, और जो आखिर में दो हरूफ का इजाफा हुआ उसने उसको उसकी जमा बना दी। ठीक है, अब इसका भी एक तरीका है, एक पैटर्न से बनेगा, तो हम उस पैटर्न को सीखते हैं। अच्छा, अब उसको पैटर्न को सीखने से पहले हमें एक चीज और समझनी है कि जमा सालिम की भी आगे से आ, उसको कह लें आपकी दो उसकी शाखें हैं या उसकी दो आगे से ब्रांचेज हैं, कि मुजक्कर के लिए जमा सालिम बनाने का और मेथड है और मुअन्नस के लिए जमा सालिम बनाने का और मेथड है। ठीक है, अब इसको हम सीखते हैं बारी बारी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से समझ लेंगी कि हम मुजक्कर के लिए यानी मेल के लिए जमा सालिम कैसे बनाई जाती है, और मुअन्नस के लिए हम इसको फीमेल के लिए कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि जेंडर का फर्क है दोनों में, तो हम उसको सीखते हैं आगे। जमा सालिम मुजक्कर को हम पहले सीखेंगे। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। वो जमा जो वाहिद मुजक्कर इसम के आखिर में वाव नून जबर ना के इजाफे से बनती है। ठीक है, वाव नून जबर ना के इजाफे से बनती है। तो ये हमने याद रखना है कि हमारे पास वाहिद इसम के आखिर में आपके पास वाव नून जबर ना का एडिशन होगा, तो आपकी जमा सालिम मुजक्कर बन जाएगी, जिसे साउंड प्लूरल फॉर मेल कहा जाए। ठीक है, अब इसका तरीका सीखते हैं, इसके स्टेप्स देखते हैं। नंबर वन स्टेप क्या है, इसम की तनवीन खत्म कर दें और आखिरी हर्फ पर पेश यानी दम्मा लगा देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आखिर में वाव नून जबर ना का इजाफा किया जाता है, यानी वाव और नून जबर ना का इजाफा करने से हमारा जमा सालिम मुजक्कर बन जाएगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं पहले। मुस्लिमुन, आपके पास इसम आया मुस्लिमुन, इसकी तनवीन ड्रॉप करेंगे हम, तो ये, और इसके आखिर में दम्मा लगाएंगे, पेश लगाएंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमुन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वाव नून जबर ना का इजाफा, तो ये मुस्लिमूना, आपके पास फाइनल आ गया मुस्लिमूना। एक और एग्जांपल देख लें इसकी, काफिरुन, पहला स्टेप करेंगे कि इसम की तनवीन ड्रॉप की, यहाँ पर पेश लगाई आखिरी हर्फ पर, वाव नून जबर ना का इजाफा किया, बना काफिरूना। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपने भी इसकी देखी। आगे हम चलते हैं। अब आपने इसकी पहचान याद रखनी है कि जमा सालिम मुजक्कर की पहचान क्या है, कि इसम के आखिर में ऊना की आवाज पैदा होती है, जो कि जमा सालिम मुजक्कर की अलामत है, जो कि जैसे हमने मुसन्ना में सीखा था कि जब हम मुजक्कर की मुसन्ना बताएंगे तो आनी की आवाज आ रही थी, तो इसी तरह जमा में ऊना की आवाज आएगी। जब भी हम मुजक्कर की जमा बनाएंगे तो ऊना की आवाज आएगी। तो यहीं से मुस्लिमन को हम लेते हैं, ये वाहिद इसम है मुस्लिमुन, इसकी मुसन्ना बनी मुस्लिमानी, जमा बन गई मुस्लिमूना। ठीक है, काफिरुन वाहिद इसम है, मुसन्ना बनाएंगे काफिरानी, जमा बनाएंगे काफिरूना। मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना। साउंड्स बताने का मतलब ये है, आपको एंडिंग साउंड इसलिए बताया जा रही है ताकि आपको उसको याद रखने में आसानी होगी, जब भी आपके सामने कोई ऐसा इसम आएगा तो आपको उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं।
पहले एग्जाम्पल आपके सामने है सॉलिहुन, हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे साथ साथ और हम उसको लेके चलेंगे कि हम तनवीन ड्रॉप करेंगे, पेश लगाएंगे सॉलिहू, ऊना का इजाफा करेंगे सॉलिहूना, ठीक है, नेकी करने वाला। अगला है फासिकुन, तनवीन ड्रॉप की, पेश लगाई, ऊना का इजाफा किया, फासिकूना, नाफरमानी करें। ज़ालिमुन, तनवीन ड्रॉप, पेश लगाई, ऊना का इजाफा किया आपने, ज़ालिमूना, ज्यादती करें। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जमा सालिम मुजक्कर सिफात की बनती है, ठीक है, जमा सालिम मुजक्कर सिफात की बनती है। सिफात क्या होता है, सिफ्त की जमा है ये भी, और सिफ्त कहते हैं एडजेक्टिव को, किसी का अच्छा होना, बुरा होना, बड़ा होना, छोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये सब सिफात में आता है किसी, और इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दूसरी बात एक आप ये भी याद रखें, सिर्फ ये पहचान के लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको बहुत से ऐसे अस्मा मिलेंगे जो कि ये फाइलुन के वेट पर आएंगे, इसे वजन कहा जाता है, इसे वेट कहा जाता है किसी भी इसम का। फाइलुन के वजन पर जो आपको वाहिद अस्मा मिलेंगे उनकी जमा सालिम बनेगी इस तरह से। अब आप इसके साउंड पे गौर कीजिएगा, सॉलिहुन, फाइलुन, देखें साउंड्स मैच कर रही हैं, तो ये सॉलिहुन का जो वजन है ये यहाँ पर फाइलुन का वजन है, ठीक है, इससे आपने इसको याद रखना है। तो इसकी जमा बनी सॉलिहूना, ठीक है, जो फाइलुन के वजन पर आपके आसमा मिलेंगे उनकी जमा मुकस्सर, सॉरी, जमा सालिम मुजक्कर बनेगी, ठीक है, और जमा सालिम मुजक्कर सिफात की बनती है। अब ये सारी सिफात ही हैं आपके सामने, सॉलिहुन, फासिकुन, जालिमुन, ये सब आपके सामने सिफात है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मुनाफिकुन, मुनाफिकू, ऊना का एडिशन मुनाफिकूना, मुनाफकत करने वाले। मुशरिकुन, मुशरिकू, ऊना का एडिशन किया, मुशरिकूना, शिरक करने वाले। मुकमिनुन, मुकमिनू, ऊना का एडिशन किया, मुकमिनून, मुकमिनूना, ईमान लाने वाले, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इन पॉइंट्स को भी देख लीजिए। अगर मुजक्कर आकिल का इसम अलम यानी नेम या सिफत हो तो जमा सालिम मुजक्कर बनती है। अब आप आकिल के बारे में सोचेंगे कि आकिल क्या है, नहीं, आपके सामने एक आ गई, तो आकिल कहते हैं इंसान, जिन और फरिश्ते। अरबी में इंसान, जिन और फरिश्ते आकिल की कैटेगरी में आते हैं, यानी जो अक्ल रखते हैं, ठीक है। अब फरिश्ते ना तो मुजक्कर है ना मुअन्नस, इस बात को भी आपको जहन में रखना है। गैर आकिल, जब आकिल है जो अक्ल रखते हैं, उनके बाद गैर आकिल की कैटेगरी है, यानी जो अक्ल नहीं रखते हैं, जिसमें नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं सारी आपके पास, जमीन, मस्जिद, शहरों के नाम, कलम, किताब वगैरह, ये सब गैर आकिल है, ठीक है, यानी नॉन लिविंग चीजें हैं। इसम अलम क्या है, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, ये किसी के पर्सनल नेम को कहा जाता है, ठीक है। किसी के नाम को इसम अलम कहते हैं, जैसे कामरान, इमरान, मुस्तफा, शाहिद, मूसा, नू, इस तरह से ये सारे नाम जो है इसम अलम कहलाते हैं, जिन्हें पर्सनल नेम भी कहा जाता है, ठीक है। इन चीजों को आपने याद रखना है, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जमा सालिम मुअन्नस, ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस है साउंड प्लूरल फॉर फीमेल, वो जमा है जो वाहिद मुअन्नस इसम के आखिर में आतून के इजाफे से बनती है, ठीक है। जमा सालिम मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है, देखिए, नंबर 1 स्टेप है हमारे पास। क्योंकि हमें पता है कि मुअन्नस के आखिर में गोलता आती है, उसकी ये अलामती मुअन्नस में आती है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप में हमने गोलता को ड्रॉप करना है, इसके बाद आतुन का इजाफा करना है, ठीक है। आतुन कैसे आप लिखेंगे, ये अलिफ के बाद ता पर तनवीन आ जाएगी तो ये आपका आतुन बन जाएगी, ठीक है।
इसकी एग्जाम्पल देखिए, मुस्लिमातुन, इसकी तनवीन ड्रॉप करेंगे, ठीक है, मुस्लिमा बन गया पीछे तनवीन ड्रॉप होने के बाद, देखिए, और इसके बाद हम आतुन का इजाफा करेंगे तो मुस्लिमातुन, ठीक है, काफिरातुन, तनवीन ड्रॉप, आतुन का एडिशन करेंगे, काफिरातुन। इसके चंद और एग्जांपल्स देखते हैं, और ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि इस्म के आखिर में आतुन की आवाज पैदा होती है, जो कि जमा सालिम मोनस की अलामत है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे मुजक्कर मुसन्ना की साउंड बताई आनी, और मुजक्कर जमा सालिम की साउंड बनी ऊना। इसी तरह मुसन्ना मोनस की अलामत थी तानी, उसकी साउंड जो थी तानी। और अब हमने ये सीखा कि जमा सालिम मोनस की जो साउंड होती है वह आतुन से आती है, ठीक है। इन साउंड्स को आपने याद रखना है। अब जैसे मुस्लिमातुन को ले लीजिए, वाहिद इसम है, इसका मुसन्ना बनेगा मुस्लिमातानी और जमा मुस्लिमातुन। काफिरातुन वाहिद इसम है, काफिरातानी मुसन्ना, और काफिरातुन इसका जमा का सीगा बन गया। इसकी एग्जाम्पल देखिए, मुकमिनातुन, तनवीन ड्रॉप, मुकमिना, आतुन एडिशन किया इसके आतुन का और बन गया मुकमिनातुन, ईमान लाने वालियां। नेक्स्ट देखिए, सॉलिहतुन, तनवीन ड्रॉप, आतुन का एडिशन किया, सॉलिहातुन, नेकी करने वाली। फासिकतुन, तनवीन ड्रॉप, आतुन का एडिशन किया, फासिकातुन, नाफरमानी करने वालियां। नेक्स्ट है मुनाफिकतुन, तनवीन ड्रॉप, सॉरी, टाइम गोल ताम ड्रॉप करनी थी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुना मुनाफिका, आगे आतुन का एडिशन किया तो मुनाफिकातुन, मुनाफकत करने वाली। माजरत, मुझे गोल था को ड्रॉप करना था, मैं तनवीन ड्रॉप कह रही हूँ, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। मुशरिकातुन, गोल था ड्रॉप, और आपकी ये बन गया मुशरिका, आतुन का एडिशन करेंगे मुशरिकातुन, शिरक करने वालियां, ठीक है। तनवीन ड्रॉप गोलता या ताय मरबूता जिसको कहा जाता है, ये ड्रॉप करेंगे, इसके बाद आतुन का एडिशन करेंगे, तो आपका जो है जमा सालिम मोन्नस का सीगा तैयार हो जाएगा। नीचे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है कि अगर मोन्नस आकिल का इस्म अलम हो, या अकल, सॉरी, आकिल और गैर आकिल, इसको आकिल कर लीजिएगा, आकिल और गैर आकिल की सिफत हो तो जमा सालिम मोन्नस इस्तेमाल की जाती है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। हमने कहा कि आकिल का पर्सनल नेम हो, ठीक है, यानी किसी भी जैसे इंसान का पर्सनल नेम होगा, और यानी मोन्नस का, ठीक है, इस चीज को जहन में रखना है, मोन्नस आकिल का, ठीक है। जैसे फातिमा का, खदीजा का, तो इनका सबका पर्सनल नेम ये हुआ, ठीक है, इसका, और अकल, आकिल और गैर आकिल की सिफत हो, ठीक है। जो आकिल हैं उनकी सिफत आएगी, और गैर आकिल की सिफात भी जो होती हैं, यानी जो नॉन लिविंग चीजों की भी सिफात होती हैं, उनके लिए जो हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, जो जमा इस्तेमाल की जाती है वो जमा सालिम मोन्नस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमारे पास सारी मुमिनतुन, सालिहतुन, फासिकतुन, ये सब जो है हमारे पास आकिल की सिफात हैं, ठीक है, ये सब आकिल की सिफात हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास इसकी दूसरी जो जमा की हमने पढ़ी थी, दूसरी किस्म जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल क्या है, इसको देख लें। वो जमा जिसमें वाहिद इस्म की शक्ल बरकरार नहीं रहती बल्कि टूट जाती है, जैसे कि हमने सबसे पहले पहली स्लाइड में काफिर की देखी थी कि वो काफिर से कुफार बन गया था। जमा मुकस्सर बनाने का कोई खास तरीका नहीं है, इसका कोई खास कायदा मुकर्रर नहीं, अलबत्ता जमा की मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। अब जमा की मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं, यानी कि जब भी जमा मुकस्सर बनेगी तो हर इस्म की एक जैसी नहीं बनेगी, यानी सीक्वेंस नहीं होता। जैसे हमने जमा सालिम मुजक्कर में देखा था कि हमें सीक्वेंस मिल रहा था ऊना के साथ, मोनस में आतुन के साथ, ये सीक्वेंस था। लेकिन जब जमा मुकस्सर बनती है तो इसकी मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ साउंड फिर होते हैं उनके, ठीक है। उनमें एक जैसा, इसमें कोई चीज एक जैसी नहीं होती। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी इंशाल्लाह।
इसकी एक और आपने पॉइंट याद रखना है कि चीजें, मुल्कों के नाम, जानवरों के नाम, इन सब की जो है जमा मुकस्सर बनती है। ठीक। अब जैसे ये किताबुन है आपके सामने, किताबुन क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है, गैर आकिल है, तो इसकी जमा बनती है कुतुबुन, बुक्स, या बुक कह लीजिए, हुमुरुन, ठीक है। इसकी जमा है हिमारुन, डोंकी, ठीक है। आगे देखते हैं नोट में क्या है हमारे पास। नोट में है कि चीजें, मुल्कों के नाम, जानवरों के नाम, इनकी जमा मुकस्सर बनेगी, ठीक है। जो नॉन लिविंग चीजें हैं, ये सब नॉन लिविंग है ना, तो इनकी जमा मुकस्सर बनेगी। जब भी हमें किसी नॉन लिविंग चीज की जो हमें उसकी जमा बनाने के लिए कहा जाएगा, या हम किसी नॉन लिविंग चीज की जमा पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये जमा मुकस्सर है। आपको जुमले का, या जब कभी किसी आयत में किसी ऐसी चीज का जिक्र होगा, तो आपको जुमले का कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। और जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम अपनी क्लासेस में आपको एक्टिविटीज देंगे, या हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें भी हम आपको मेंशन करेंगे, साथ समझा देंगे कि ये जमा मुकस्सर है। और उसको आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ इसको खुद से सीखती जाएंगी कि ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि एक्सेप्शंस के लिए खुद को आपने रेडी रखना है, अपने जहन को रेडी रखना है, उन एक्सेप्शंस को थोड़ा सा याद रखने की बस बात है। तो एक्सेप्शंस क्या है कि कुछ ऐसे अस्मा है जिन पर ये जमा मुकस्सर का कायदा जो है ये अप्लाई नहीं होता, तो हम उनको देख लेते हैं। जैसे है आलिमुन, आलिमुन का मतलब होता है जहान, ठीक है। तो इसकी जमा जो है आलिमुना बनती है, ठीक है, इसकी जमा मुकस्सर नहीं बनती। इसी तरह अरबुन, अर्थ को कहते हैं, जमीन को कहते हैं, तो इसकी जमा मुकस्सर नहीं बनती, इसकी जमा बनेगी अरबूना। इसी तरह इशरुन, इशरुन कहते हैं, ये गिनती का है सीगा 10 को, नंबर 10 को, ठीक है। अरबी में 10 को इशरुन कहा जाता है। तो जब इसके बाद जितनी जमा बनती है 10 से लेकर 90 तक की, जो हमारे पास हम टेंस में पढ़ते हैं, उनको हम इशरूना, ठीक है, इस पैटर्न पर लेकर आते हैं। इशरूना, इशरूना का मतलब है 20, ठीक है। जैसे हम इशरूना, इसके बाद जो आता है तिसऊना 30, ठीक है। अरबा, सॉरी, तलासूना 30, अरबाऊना 40, खमसूना 50, सित्तूना 60, सबऊना 70, और समानूना 80, और 90 को कहते हैं तिसऊना, ठीक है, 90 तक। ये सारी इशरूना से लेके तिसऊना तक आपकी जो गिनती है वो इसी पैटर्न पर चलती है। गिनती का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी जब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो देखेंगे। अच्छा, अब जमा मुकस्सर की आपके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ, तो सिर्फ आपने समझ लेना है, नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस्मुन, अस्माउन, ठीक है, नाम को कहते हैं। हमने इसको सीखा कि किसी भी इसम के आखिर में अगर अलिफ के बाद हमजा पर सिंगल हरकत होगी तो वो आपका जो है अलामती मोनस में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अलिफ के बाद हमजा पर तनवीन है, तो ये इसम है, यानी ये नाउन है यहाँ पर, ठीक है। कल्बुन, कुलूबुन, दिल को कहते हैं हार्ट। वजहुन, वजूहुन, चेहरा, फेस। शहीदुन, शुहदाउ, गवाही देने वाला, विटनेस। रजुलुन, रिजालुन, आदमी, मैन। बैतुन, बुयूतुन, घर, हाउस, या होम कह लें। शैतानुन, शयातीनुन, सेटिन। रीहुन, रियाहुन, हवा कहा जाता है, ये हमने समाई मोनस में भी इसको पढ़ा था। अब आगे देखिए, सुल्तानुन, सलातीनुन, बादशाह, हाकिम, या निशानी को कहते हैं। सहीफतुन, सुहुफुन, आसमानी कुतुब को कहा जाता है। रसूलुन, रुसुलुन, यानी भेजे गए। मिस्कीनुन, मसाकीनुन,
मुफलिस या मोहताज को कहते हैं। हुमुरुन, हिमारुन, डोंकी। कल्बुन, किलाबुन, डॉग को कहा जाता है। ये आपके पास एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ये आपका फाइनल जो हमने आज पढ़ा उसका मैप है कि हमने पढ़ा जमा, जमा की दो अक़साम हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम की भी आगे से हमने पढ़ा कि मुज़क्कर के लिए बनाने का और तरीका है, मुअन्नस के लिए बनाने का और तरीका है। मुज़क्कर के आखिर में, जमा सालिम में मुज़क्कर के आखिर में आप वाव बना कर इजाफा करेंगे तो जमा सालिम मुज़क्कर तैयार हो जाएगी, या साउंड प्लूरल फॉर्म मेल तैयार हो जाएगा आपका। और मोनस में आतुन का इजाफा करेंगे तो आपकी जमा सालिम मोनस तैयार हो जाएगी। जमा मुकस्सर क्या है? जमा मुकस्सर हमने देखा ब्रोकन प्लूरल है, इसके मुख्तलिफ पैटर्न आते हैं, वो इंशाल्लाह आप वक्त के साथ सीख जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस क्लास में भी हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और ये आज का टॉपिक था हमारा जमा का। यहाँ पर हमारा जो इसमें इसम के चार पहलू पढ़े थे, जिसमें जिन्स, जेंडर, अदद, नंबर, वुसत, कैपेसिटी और एराब, स्टेटस। ये चार हैं, दो हमारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास हमारा वुसत और एराब का टॉपिक आ गया, इंशाल्लाह हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।